Assalamu alaikum everyone. So today we are going to start our first chapter which is globes and maps. तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है globes and maps. So in this chapter we will learn about globe and its use, latitudes and longitudes, maps, types of maps, language of a map, direction, scale, legend और की, कलर्स एंड सिम्बल्स. तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे. इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. सो let's start. Earth is our home planet. Many years ago, people believed that the Earth was flat. Abu Rehan Muhammad bin Ahmad al-Biruni researched and found in the 11th century CE that the Earth is round like a ball by calculating its circumference. Later in the 15th century CE, a Portuguese explorer Ferdinand Magellan sailed only towards the west and returned to the same place after 3 years, thus proving that the Earth is round. With the photos of Earth taken from this space, it is proved beyond doubt that the Earth is round. So here is the picture of Earth. So you can see that the shape of the Earth is round like a ball, not flat. But earlier people believed that the Earth was flat. तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं अर्थ की. ये एक राउंड बॉल की तरह है, ना कि ये फ्लैट. अर्थ हमारा राउंड बॉल की तरह है, ना कि ये फ्लैट है. लेकिन बहुत साल पहले लोग ये मानते थे कि अर्थ हमारा फ्लैट है, ना कि वो राउंड है. ठीक है. सो अर्थ इज़ आवर होम प्लैनेट. होम प्लैनेट क्यों कहा जाता है इसे? क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग रहते हैं, तो अर्थ को हम लोग होम प्लैनेट भी कहते हैं. मैनी ईयर्स अगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. बहुत साल पहले लोग ये मानते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, ना कि वो राउंड है. Abu Rehan Muhammad bin Ahmad al-Biruni researched and found in the 11th century CE that the earth is round like a ball by calculating its circumference. तो 11th सेंचुरी में एक पर्सन थे अबू रेहान अहमद अल बिरौनी. इन्होंने ये सर्च किया, उन्होंने पाया और उन्होंने लोगों को बताया कि अर्थ राउंड शेप में है, बॉल की तरह, ना कि वो फ्लैट है. Later in the 15th century CE, a Portuguese explorer, Ferdinand Magellan, sailed only towards the west and returned to the same place after 3 years. फिर उसके बाद 15th सेंचुरी में एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर थे. एक्सप्लोरर मतलब ऐसा पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो नई नई जगह की खोज करते हों और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हों, तो उसको कहते हैं हम लोग एक्सप्लोरर. तो ये फर्डिनेंड मैगलन एक एक्सप्लोरर थे जो कि रवाना हुए थे वेस्ट से, और फिर 3 साल बाद वो पाते हैं कि वो जहाँ से वो रवाना हुए थे 3 साल बाद वो वहीं पे आ पहुँचे हैं. तो इस तरीके से उन्होंने ये प्रूव किया था, दस प्रूविंग द अर्थ इज़ राउंड. तो इस तरीके से उन्होंने ये प्रूव किया था कि अर्थ राउंड है, ना कि वो फ्लैट है. With the photos of the earth taken from the space, it is proved beyond doubt that the earth is round. तो और तरीके से भी, मतलब स्पेस से लोगों ने फ़ोटोज़ ली, फ़ोटो से लोगों को ये पता चला कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है, ना कि वो फ्लैट है. और इस लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया कि अर्थ फ्लैट है. सो अर्थ इज़ राउंड इन शेप, not flat. Okay, so our next topic is globe. We cannot study earth at one time as it is very big. Study becomes easy with the help of a spherical model of the earth called globe. A globe helps us to identify the shape, location of different continents, countries, oceans and seas. The globe spins on a rod. This rod represents the earth axis. The earth axis is an imaginary line passing through the center of the earth. The topmost part of the rod represents the north pole and the lowermost part of the rod represents the south pole. The equator is an imaginary line passing through the center of the earth, dividing the earth into 2 halves called hemisphere. The upper part is the northern hemisphere and the lower part is southern hemisphere. So what is globe? So as you can see in the picture, globe is a spherical model of the earth. Okay, it is in a spherical shape. A globe helps us to identify the shape, location of different continents, countries, oceans and seas. तो ग्लोब एक स्फेरिकल मॉडल है अर्थ का, जिस पे सारे हम लोग अपनी लोकेशन जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज़ की, ओशन और सीज़ की. ठीक है. एंड दिस रॉड रिप्रेजेंट द ग्लोब स्पिन्स ऑन अ रॉड. और जो ग्लोब होता है वो एक रॉड पे स्पिन करता है, एक रॉड पे घूमता है. ओके, दिस रॉड, it spins on the rod. Okay, so and
दिस रॉड रिप्रेजेंट द अर्थ एक्सिस, और इसी रॉड को, ये रॉड किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो इमेजनरी लाइन जो अर्थ के सेंटर से होके गुजरती है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस। It is called earth axis. Okay, and the topmost part is called north pole, and lowermost part is called south. This, okay, this will call south, and upper part is north. Clear? Now what is equator? An equator, the equator is an imaginary line passing through the center of the earth, dividing the earth into two halves कॉल्ड हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर क्या होता है? ये एक इमेजनरी लाइन होती है जो अर्थ के सेंटर से, ग्लोब के सेंटर से होकर गुजरती है। दिस इज़ द इमेजनरी लाइन। ये देखिए, ये हमारा इक्वेटर है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? ये हमारा इक्वेटर है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। पहला अपर पार्ट को हम लोग कहेंगे नर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला, ये हमारा नर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और जो नीचे का पार्ट होगा हमारा, वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। वी कैन नॉट स्टडी अर्थ एट वन टाइम एज इट इज़ वेरी बिग। हम लोग अर्थ को एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। स्टडी बिकम ईजी विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड ग्लोब। तो ये अर्थ को पढ़ना आसान हो गया है किसके ज़रिए से? एक स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ होता है जिसको कहते हैं हम लोग ग्लोब। उसके ज़रिए से हम लोग अर्थ को ईजी पढ़ सकते हैं, आसान तरीके से उसको समझ सकते हैं। A globe help us to identify the shape, location of different continents, countries, oceans and seas. तो ग्लोब के ज़रिए से, ग्लोब की मदद से हम लोग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ और सीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द ग्लोब स्पिन्स ऑन अ रॉड। तो ग्लोब किस पे स्पिन करता है? स्पिन मतलब घूमना। तो ग्लोब जो है हमारा एक रॉड पे घूमता है। दिस रॉड रिप्रेजेंट द अर्थ एक्सिस। और ये रॉड जो है, जो हमने बताया था पिक्चर में अभी इससे पहले, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एक्सिस को। अब अर्थ एक्सिस क्या होता है? द अर्थ एक्सिस इज़ एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ एक्सिस एक इमेजनरी लाइन होती है जो ग्लोब के अर्थ के सेंटर से होते हुए गुजरती है। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द रॉड रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल। तो ऊपर का जो पार्ट होता है, टॉप पार्ट होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। एंड द लोअर मोस्ट पार्ट रिप्रेजेंट द साउथ पोल। और जैसा कि हमने बताया था, लोअर पार्ट जो हमारा रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल को। द इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, डिवाइडिंग द अर्थ इंटू 2 हाफ्स कॉल्ड हेमिस्फीयर। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर एक इमेजनरी लाइन होती है जो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। पहला हमारा होता है द अपर पार्ट इज़ नर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज़ सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो हमारा नर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे का पार्ट हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। अस्सलाम वालेकुम।